नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज ऑल इंडिया लर्नर्स फोरम के वेबिनार में। आज का टॉपिक रखा हुआ है रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग कोविड-19 इन लीगल पर्सपेक्टिव। मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनीष सिंघवी, सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, एडिशनल एडवोकेट जनरल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कपिल मिश्रा, माथुर एडवोकेट, हु इज मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र बंसल जी, हु इज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ दैनिक जागरण फ्रॉम एनसीआर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिव्यांश हनु राठी, मैनेजिंग पार्टनर लेक्सिडम एंड राठी एंड फाउंडर ऑफ लेटेस्ट.com। आज हमारे मीडिया पार्टनर हैं latestlawcom। तो मैं सबसे पहले आज स्पीच आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर गेस्ट। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ दिव्यांश हनु राठी जी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है लेक्सिडम एंड राठी एंड फाउंडर latestlawcom। He is an associate member of Chartered Institute of Arbitrators, London. Divyansh has done his masters in international dispute resolution from King's College London, and he has been instrumental in setting up of Indian Dispute Resolution Center IDRC। तो आज हम पहले शुरू करते हैं latest.com के फाउंडर दिव्यांश राठी, जो कि बहुत यंग हैं और जिनके जो विचार हैं वो भी यंग हैं। तो दिव्यांश जी, आपका स्वागत है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करें और अपनी स्पीच रखें। धन्यवाद। Thank you, Vikas sir, for such a warm welcome, and I would like to thank Vinod Kumar Goyal sir for inviting me to today's webinar on role of media in COVID times in legal perspective. Very good afternoon to my co-panelists and the viewers who have joined today's webinar. So moving on to the topic for today, I would like to start by saying that media as an institution thrives upon freedom of speech and expression, which has been clearly stated under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. Like every other right, the right of freedom of speech and expression comes with inherent duty to speak the truth, duty not to misrepresent the facts, and duty not to violate the public and private rights of the citizens, which includes not indulging in defamation, duty not to hurt religious sentiments of your co-citizens and other members of the society. Like this, the list is endless. But I would like to go back in the time, that during the time of freedom struggle, the different modes of expression have changed drastically since then. Earlier days, there was only print media, like newspapers and magazines. Since then came the television, then came the radio, and in last 2 decades, with the growth of internet, it has given birth to the social media. It's in last 10 years, there has been tremendous growth of social media with coming up of WhatsApp, Facebook, Twitter, and other forms of social media. So this has got significant change, and now everyone has the smartphones. They have their social media handles. The users can just share their views through these handles and have a wider reach of such views. So there has been a symbolic change in the what we call the liberation of freedom of expression. There has been a magnanimous change, how the papers have become e-papers, magazines have become e-magazines, and web portals. So now it is right to say that every citizen of India who is equipped with a smartphone, which has a camera, has become a citizen journalist. Wherever we see all over India, anything which happens is is broadcasted on Facebook or Twitter, or someone tweets with any news that happens in any corner of the world. It is now not restricted to the just news channels reporting such news. So we can see that there has been a technological shift in the media, which has certainly changed the paradigm of the do's and don'ts, which were adopted by the news channels and other news channels and other media channels. So this has completely diluted these precautions which were earlier observed. So, but at the same time, I would like to mention that there has been attempts made by the governments and legislatures to tame the social media by way of legislation. I would like to state that mentioned Section 66A, which was introduced under Information Technology Act in the year 2009 and was thus declared unconstitutional and violated by the Supreme Court. And even the reasonable restriction, which is written under the Article 19(2) of the Constitution India, could not save it.
there has been during the after. In earlier days during later part of the 19th century, there were censorship during the emergency, and recently also there was an incident where TV channel was sent a notice for blocking the broadcast for some activities which were not favorable towards the government. So, but I would like to state that in the current times of the coronavirus pandemic, which has ravaged the entire world, including India, I would not like to state that. I would like to state that media as a whole, which includes print media, radio, television, virtual media like Facebook, Twitter, and other websites, have played a very constructive role in decimating the details of the cases, the nature of coronavirus, the precautions the users should observe while staying at home, and also those are going out for the essential activities. The precautions that these individuals should observe have been a critical part of the media news channels which have been observed. So, so I would like to state that the positive role has not only helped in saving the lives of the people, but also have helped the government and the enforcement authorities in enforcing the law and order during the pandemic time and during the lockdown. Having said this, there are always a segment of society which are into nefarious activities, those who are scaremongers and fake news creators who try to destabilize the situation in the coronavirus times. We have saw like how a simple WhatsApp message in the migrant workers got circulated, and there were thousands of migrant workers who got assembled in Delhi or in Bombay. There were thousands of such people, and no one had any idea like what was the cause behind it, and it was simply a Facebook message or Facebook post which created such panic situation. And these situations have been duly dealt with. The FIRs have been registered against such people. Such fake news peddlers have been punished under the law. But what I would like to say here that this has divided media in two types. There is a responsible media which shows the truth, and there is a other type of media which has come up, which is when we called as rogue media. The menace of fake news is not giving only bad name to the responsible media channels, but also has acquired dangerous propositions. What I would like to state that when the same is sponsored even by our enemy countries or the neighboring countries, which our relations are really not very in good position these days. I would like to add that recently on 1st April, the Supreme Court bench, headed by our Chief Justice of India and Justice Ellen Rao, while hearing a matter pertaining to the today, which is very well relevant to the today's topic, is on fake news, and I quote what the bench stated. The bench stated that we expect the media, which includes print media, electronic media, and social media, to maintain strong sense of responsibility and ensure that unverified news is because unverified news is capable of causing panic if it is is capable of causing panic. The bench further stated that the court doesn't not intend to interfere with free discussion on pandemic, but it directed media to refer and publish to official versions of the developments. Followed by this, the government has taken certain measures like daily news press briefings were started, and also action was taken under Section 54 of the Disaster Management Act of 2005 against such peddlers of fake news. I would like to cite Supreme Court Honorable Justice Sanjay Kishan Kaul in a recent webinar stated that fake news is more dangerous than the virus. This statement by coming from Supreme Court judge has got a certain weightage attached to it. And also followed by this, certain directions, very clear directions have been issued by the government to social media companies, and they have started their own campaigns like Forward Mat Karo and other campaigns in which Virat Kohli and other celebrities have already started taking part in their online campaigns to ask people from desisting from sharing these news articles which are created by these fake news peddlers. And also government has stated that one of the main reasons of sharing of fake news was WhatsApp. So they have asked WhatsApp that the admins will be responsible if the members are found sharing the fake news. So in this case, what I would like to state is that online portals have to be very cautious while sharing the updates about coronavirus pandemic. They have a huge followership on Facebook and Twitter because masses of people follow such websites and e-newspaper websites, and even a minute of error can mistake by this website can turn into a fireball, creating a panic among the citizens even before a slightest of rectification is made. But already the damage is done, like we saw in the
how the migrant workers assembled in Delhi and Bombay. So there is not any coming back from such a situation when the such migrant workers assemble or such situations arise. The citizens can protect themselves. I would like to say that citizens they can protect themselves from fake news peddlers on social media websites like WhatsApp and Facebook by cross-checking it from the other mainstream news channels. Like we have different national news channels like Times of India, Hindustan Times. So before taking what they receive on WhatsApp or through Facebook as a gospel truth, considering it as a gospel truth, they should cross verify it with the other news channels. And also the news websites have themselves started, like news channels which we can see every other day, they have started reverse video or reverse image search to unearth the truth of the viral fake news and videos. Myself being a founder of a law website, founder of the law website, increases the moral responsibility towards the society to double check the authenticity of the news before posting such sensitive news towards lawyers as well as judges. We need to filter which news we should be posted, and the credibility of the news has to be filtered out on the basis of the impact on the legal system, its authenticity, and the credibility of such statement which has to be published on the website. Our main aim is to promote constructive discussion on the legal topics and healthy criticism of institutions of law, not promoting negative thought process towards the legal system and its esteemed members. In conclusion, I would like to state that the social media is particularly a double-edged weapon. It can prove to be boon or a bane, and it depends upon how we use it and when we use it. There cannot be any better medium than a media to reach to the people 24/7, 365 days a week. But social media needs to adopt particular self-discipline to be more responsible. With this, I would like to conclude my speech. Vikas sir. Yes, please. Yes, sir. Please. Thank you. Divyansh, you spoke very well, but I received a lot of messages that sir, if your webinar would be in Hindi, so it would be better. तो मैं जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट है हम उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा हिंदी में भी ऑडियंस हमारे साथ, क्योंकि आज 23 स्टेट हैज बीन कनेक्टेड विद अस। तो 23 राज्यों से लोग हमारे साथ हैं, राजस्थान, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो तमाम सब लोगों का रिक्वेस्ट आया है। तो दिव्यांश, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जो मीडिया का रोल है वो इन लीगल पर्सपेक्टिव वे में किस तरह से होता है और कितना विजिलेंट होता है। हाँ, मैं क्योंकि उस समय वेबिनार में हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमारे साथ ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम के चेयरमैन विनोद कुमार गोयल जी हैं। विनोद कुमार गोयल जी, आपका स्वागत है। ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम इज द फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन for the national legal practitioners, bar associations and law societies, which is established in 2009. The All India Lawyer Forum is a voluntary professional organization for the legal professionals of India. It has been formed to shape the future of the legal profession throughout the India. तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान हमने अब तक काफ़ी सारे वेबिनार्स कवर किए हैं ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो न केवल एडवोकेट बल्कि समाज से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड विषय है। अब इस कड़ी में मैं हमारे जो अतिथि हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज उनका जन्मदिन भी है। विजेंद्र बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विशेष कॉरेस्पोंडेंट हैं दैनिक जागरण से। सर, आपका स्वागत है और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हमारे साथ आज हजारों दर्शक जुड़े हुए हैं जो हिंदी में भी सुनना पसंद करते हैं, तो कृपया आप अपना इस विषय पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। विजेंद्र बंसल जी। धन्यवाद विकास जी। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ता काफ़ी अच्छा बता रहे थे, और आपने जैसे अपने स्टेट्स के बारे में बताया, वो सारे हिंदी भाषी स्टेट्स हैं जिनसे आज हमारे सामने सब लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, कोविड-19 का मुद्दा जैसे ही पूरे वैश्विक स्तर पर सामने आया, आज हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए। और एक विश्लेषण मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको बताऊं, उससे ज़्यादा, क्योंकि समाज का जो नज़रिया होता है वो वकीलों के, अधिवक्ताओं के नज़र में भी उससे ज़्यादा खास होता है। तो आज हमें वो पूरा
वातावरण, पूरा माहौल जब कोविड-19 शुरू हुआ, उसका आगाज हुआ, उससे लेकर के और अब तक जो हमारी परिस्थितियां रही समाज की, जो हमारे देश की परिस्थितियां रही, जो हमारे प्रदेश की परिस्थितियां रही, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर की जो परिस्थितियां रही, उन सब पर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो परिस्थितियां रही, उन सब पर हमें एक विश्लेषण करना चाहिए। और यदि हम उस विश्लेषण के निचोड़ पर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो कोविड-19 के दौरान हम सबके सामने, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बात आई हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बात आई हो, चाहे कानूनी दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बात आई हो, उन तीनों का समावेश उस निचोड़ में मिल जाएगा। यदि मैं पत्रकारिता के जमीनी स्तर से बात करें तो जो चिंता आज लॉयर्स के रूप में आप लोगों की है, वो चिंता जर्नलिस्ट जो जमीनी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे थे, जो खबरें जुटा रहे थे, जो सूचनाएं जुटा रहे थे, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब उस चुनौती को यदि हम एक विश्लेषण करें उन चुनौतियों का, तो एक सबसे बड़ी चुनौती थी उनके सामने क्रेडिबिलिटी की, क्योंकि हमारे पास सूचना का तंत्र है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर हमारे पास सोशल मीडिया का सबसे बड़ा। और सोशल मीडिया इन दिनों चूंकि सब लोग अपने घरों में थे लॉकडाउन के दौरान, तो सोशल मीडिया उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी था। लेकिन सोशल मीडिया पर जो सूचनाएं उनके सामने आ रही थी, उनके ऊपर उनका विश्वास उतना नहीं था जितना विश्वास वो प्रिंट मीडिया पर कर सकते हैं, जितना विश्वास वो दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कर सकते हैं। इसी दौरान यदि आप देखेंगे तो इस विश्वास को लेकर के खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया कि भाई व्हाट्सएप पर कोई किसी तरीके की कोई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि व्हाट्सएप पर इस तरीके की कोई भ्रामक प्रचार की बातें सामने नहीं आ सकती। यहाँ तक कि मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक आदेश जो बहुत ज़्यादा हमने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, लेकिन उस आदेश में ये था कि उन्होंने गूगल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इन सब से कोविड-19 के ऊपर अपनी पॉजिटिव भूमिका अपनाने के लिए रिक्वेस्ट की। ये इंडिया गवर्नमेंट ने पहल की और WHO के माध्यम से पहल की, और इस पहल का काफ़ी सार्थक परिणाम भी आया, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंची जो बड़ी भ्रामक थी। और अब यदि आप उस कोविड लॉकडाउन से निकलने के बाद अनलॉक 1 पर आ जाएं, तो अनलॉक 1 का आज पहला दिन है। इस पहले दिन में यदि आप किसी भी समाचार पत्र को उठा करके देख लें तो वो ये नहीं कहेंगे कि हरियाणा में 1922 कोरोना केसेज हैं, वो ये कहेंगे कि हरियाणा में इस समय एक्टिव केस 885 हैं और अब तक जितने केस आए उनमें से 1200 के करीब या 1100 के करीब केसेज जो मरीज थे वो ठीक होकर के चले गए। तो ठीक होने वालों की संख्या 65%, अधिकतर प्रदेशों में 65% की संख्या ठीक होने वालों की है। अब ये लीगल एस्पेक्ट से इसके शुरू हो जाते हैं कि जर्नलिस्ट जो मीडिया की भूमिका है वो क्या कानून सम्मत अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे थे, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता था? तो विश्वास तो मैं समझता हूं कि यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब आप लॉकडाउन के दौरान थे तो अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने बाजार में जा रहे थे, और बाजार में जब आप जा रहे थे तो वहाँ एक जो पुराना दुकानदार था उसके पास इसलिए जा रहे थे कि ये इस समय जो रेट हैं किसी भी वस्तु के वो बिल्कुल ठीक लगाएंगे। लेकिन एक नए दुकानदार के पास यदि जा रहे थे तो वो मुंह मांगे रेट भी मांग रहे थे। यही चीज़ इस समय जो कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट सेलर हैं, मैं आज की तारीख में मीडिया को कंटेंट सेलर मानता हूँ, जो कंटेंट जुटाते हैं और आप लोगों तक परोसते हैं, पूरे समाज तक परोसते हैं। तो वो कंटेंट सेलर के सामने भी अपनी क्रेडिबिलिटी की बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस कंटेंट सेलर ने अपनी चुनौती को एक्सेप्ट किया, जिसने उस चुनौती को माना, वो देखिए आप बहुत आगे बढ़ा है। यदि आपको मैं एक एस्पेक्ट की तरफ ले जाऊं तो प्रिंट मीडिया के सामने इस कोरोना वायरस के दौरान एक ऐसी अफवाह आई जिससे उसका पूरा 100 साल पुराना तंत्र मंत्र बिखरने लगा
कि अखबार पढ़ने से, अखबार हाथ में लेने से कोरोना आ सकता है। और ये इस तरीके की वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि प्रिंट मीडिया को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा, जबकि ऐसा कोई औचित्य नहीं था कहीं भी। अब प्रिंट मीडिया ने उस चीज़ से भी निकले कि भाई लगातार उनका प्रसार गिर रहा था, लेकिन धीरे धीरे, और वो उसके पीछे एक षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र का खुलासा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी थी, वो न्यूज एजेंसी क्या करती थी कि अपना वेब चैनल चलाने के लिए प्रिंट का जो पीडीएफ फाइल थी, किसी अखबार की पीडीएफ फाइल थी, मैं उस अखबार का नाम भी जानता हूँ, उस अखबार से जुड़ा हुआ भी हूँ, प्रिंट मीडिया की पीडीएफ फाइल निकाल करके और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे, वेब चैनल पर चला देते थे। तो जिनको अखबार पढ़ने की आदत है, जिनको कंटेंट क्रेडिबल कंटेंट लेने की आदत है, वो तो वहाँ से ले रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो प्रिंट मीडिया का संस्थान था वो इससे डैमेज हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, बाकायदा उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा। तो ये लीगल एस्पेक्ट समय समय पर सामने आते रहे। अब आप देखिए, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, इन झज्जर, ये एक ऐसे जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। दिल्ली पूरा अनलॉक हो गया आज से 15 दिन पहले, लेकिन हरियाणा में या यूपी के नोएडा या गाजियाबाद जिलों में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे। इन लोगों ने कहा कि ये दिल्ली से ट्रेवल होकर के कोरोना केसेस आ रहे हैं, तो दिल्ली से ट्रेवल होकर के कोरोना केसेस ना आए, इसलिए बॉर्डर सील कर दिए जाएं। अब बॉर्डर सील करना है कोई, जब हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां हमें शुरू करनी है, हमें देश को उसी ऊंचाई पर ले जाना है, तो फिर उस कोरोना वायरस के साथ साथ हमें चलना होगा, जैसे दिल्ली सरकार ने कहा। लेकिन जब ये बात सामने आई कि भाई हरियाणा सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाजियाबाद, नोएडा के और गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत के, झज्जर के ये बॉर्डर सील कर दिए, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट फिर सामने आया। एक सोनीपत के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस डाला और उस केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए कि एसेंशियल सर्विसेज के सारे लोगों को दिल्ली से आना जाना कोई नहीं रोक सकता। और आज भी आप ये लगाइए कि बॉर्डर पर जो जाम है, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, चाहे सोनीपत हो, पूरे दिल्ली एनसीआर को चारों तरफ से दिल्ली को जकड़ दिया और बॉर्डर पर जाम लगने लगा। इस जाम के बारे में भी आज मेरी बातचीत गुड़गांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कुछ लोगों से हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि हम दिल्ली हाई कोर्ट फिर मूव कर रहे हैं और ये जो जाम है इसकी स्थिति से निजात मिलनी चाहिए। तो हर दृष्टि से वहाँ कोविड-19 की सूचनाएं क्रेडिबल तरीके से पहुँचे, उसके लिए भी कानून सम्मत बातचीत हुई। अदालत ने हस्तक्षेप किया, अदालत ने बाकायदा निर्णय दिए, निर्णायक निर्णय दिए, और उसके बाद कहीं कोविड-19 के इफेक्ट्स जो आ रहे थे सोसाइटी पर, उन इफेक्ट्स से भी निजात दिलाने के लिए हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दौरान हरियाणा हाई कोर्ट ने तो एक और बहुत बड़ा निर्णय किया, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने, वो आप लोगों के संज्ञान में होगा कि यंग लॉयर्स के लिए एक राशि उन्होंने फिक्स की कि यंग लॉयर्स के पास इस समय पिछले 2.5 महीने से कोई काम नहीं था, और वो यंग लॉयर्स क्या करें इस दौरान। तो उन यंग लॉयर्स के लिए बाकायदा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक राशि फिक्स की है, वो बार काउंसिल की तरफ से दी जाएगी, लेकिन उसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सहमति थी। ये सबसे बड़ी बात हम सब लोगों के सामने आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो हु हैं, सोसाइटी में जो अपनी बात का प्रभाव रखते हैं, वो चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी के क्षेत्र से हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग हों, उन लोगों के लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए कि वो खुद ही किसी समस्या में आकर के घिर जाएं और फिर अपनी समस्या में इतने घिर जाएं कि वो सोसाइटी की तरफ ही न देख पाएं, सेवा ही नहीं कर पाएं। तो मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस निर्णय को भी
का भी साधुवाद करूँगा, उनका आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने यंग लॉयर्स के बारे में ये सारी बातें सोची और समझी। विकास जी, आप सारे यंग लॉयर्स इस पे जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ 23 प्रदेशों से आपने बताया कि यंग लॉयर्स इसमें जुड़े हुए हैं। इस समय यंग लॉयर्स के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जब ये लॉकडाउन अब अनलॉक 1 हुआ है, या अनलॉक 4 तक जाएगा, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। इस दौरान यदि हम यंग लॉयर्स को भी ये कहें कि वो अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ा दें, और सेल्फ स्टडी बढ़ा करके वो उन विषयों को पर अपनी पकड़ बना ले जिन विषयों को लेकर के आज समाज चिंतित है, तो निश्चित तौर पर यंग लॉयर्स को पूरा समाज स्वीकार करेगा और यंग लॉयर्स की तरफ आकर्षित होगा। बड़े बड़े लॉयर्स का भी, जिनका स्वाध्याय होता है, जो सेल्फ रीडिंग करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समाज की जुटाते हैं, उनके प्रति समाज इसलिए आकर्षित होता है कि वो ज़्यादा जानकार होते हैं। ऐसे ही मेरा निवेदन यंग लॉयर्स के साथ भी है, उनको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए इस समय खास तौर पे कोविड-19 के दौरान जो समाज में बदलाव हुए, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हुए, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हुए, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हुए, उन विषयों को, चाहे वो कानून सम्मत उसका कोई फायदा ना हो, लेकिन जब हम सोसाइटी को लीड करते हैं, सोसाइटी में हमारी बात का वजन होता है, सोसाइटी हमारे लिए सब कुछ सोचती है, तो हम सोसाइटी को बताएं और उनका साधुवाद करें। खासतौर पर उन कोरोना योद्धाओं का, उन कोरोना वॉलेंटियर्स का हम साधुवाद करें यंग लॉयर्स की तरफ से, जिन्होंने इस कोविड-19 के दौरान, इस 65 दिन के कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन 4 के दौरान उन लोगों की सेवा की जो ज़रूरतमंद थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। आज ही फरीदाबाद जिले में एक ऐसी संस्था ने काम किया, उन्होंने 110 ऐसे बुजुर्ग परिवार ढूंढे पूरे फरीदाबाद में, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, वो केवल अकेले अपने परिवार के साथ अकेले रहते थे। कहीं बुजुर्ग अकेले सिंगल रहते थे, कहीं वो मियाँ बीवी दोनों एक साथ रहते थे। 110 परिवार एक संस्था ने वहाँ पूरे सर्वे करके ढूंढे, और उनको इस लॉकडाउन के दौरान, 65 दिन के दौरान टिफिन उन तक पहुँचाया। अब आप ये लगाइए कि जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग दंपत्ति है, वो अपना खाना नहीं बना सकती थी। पहले उनके लिए एक बाई आती थी खाना बनाने के लिए, वो बाई उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। वहाँ यदि किसी बुजुर्ग के पास बना बनाया घर का खाना पहुंच जाए एक संस्था के माध्यम से, और साफ सुथरा, जिसमें कोई खतरा उनके स्वास्थ्य को ना हो, और कभी उन्हें कोई राशन की ज़रूरत हो, कोई दूध की ज़रूरत हो, कोई पानी की ज़रूरत हो, तो वो संस्था उनको फीड करके आ जाए। तो ऐसी संस्थाओं के बारे में भी हमारा ज्ञान वर्धन होना चाहिए, और हमें ऐसी चीज़ों को आगे के लिए भी फैलाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का जो ये प्रकोप है, हम समझते हैं कि हम बेशक भारतीय लोग इसके साथ साथ चलना शुरू हो गए हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम इसके साथ चल भी सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले दौर में जो हमारी सोसाइटी के बुजुर्ग हैं, उनके लिए अगर ऐसी संस्थाएं सभी प्रदेशों में काम करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि मेरा समय अब खत्म हो गया। आपने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र बंसल जी। विजेंद्र बंसल जी, आप न केवल अपने लेखन में धनी हैं, बल्कि आप उच्च व्यक्तित्व के भी धनी हैं, और आपका जो इंटरेस्ट रहता है, मैंने देखा है समाज के प्रति, वो हर विषयों को लेकर रहता है। और आपका जो सुझाव है युवा अधिवक्ताओं के लिए, उस पर हम लोगों ने जो काम किया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम 40-50 दिन के लॉकडाउन के दौरान ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम के कुछ लॉयर्स ने अपने अपने स्टेटों में, जैसे माइग्रेंट लेबर्स की बात हो, चाहे अन्य जो नीडी लोग हैं उनके लिए पास बनवाने की बात हो, चाहे जो शासन प्रशासन द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हो उनके बारे में उनका सरलीकरण किया गया हो, या फेसबुक के माध्यम से कुछ अधिवक्ताओं ने जो सहायता की है, तमाम हम ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम ने भी अपने 14 से 15 वेबिनार अब तक आयोजित कर चुका है, जो न केवल लीगल विषय पर, अलग अलग तमाम विषयों पर आयोजित किए गए थे। मैं सबसे पहले कोविड-19 में जो पत्रकार थे, जब पूरा देश अपने घरों में बंद था,
उस समय पत्रकार रोडों पर जाकर पत्रकारिता कर रहे थे, और वो लोग चाहे आंकड़े जुटाने की बात हो, चाहे जानकारी लेने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स में जाने की बात हो, वो कहीं भी जाने से नहीं कतराए, और उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और लोगों तक सटीक और अच्छी जानकारी पहुंचाई। मैं इन पत्रकारों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कोविड-19 में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद विजेंद्र जी। अब हम चलते हैं कपिल प्रकाश माथुर जी के पास। कपिल प्रकाश माथुर जी, he is presently member Bar Council of Rajasthan and also a member of many sub-committees of Bar Council of Rajasthan. He has been the General Secretary of Rajasthan High Court in 2010. He was the youngest General Secretary of Rajasthan High Court. He is a standing counsel for many central and state departments and corporations. कपिल माथुर जी, आपका स्वागत है। कृपया अपना विषय पर संबोधन रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कपिल प्रकाश माथुर, एडवोकेट, मेंबर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ। मुझे विकास जी ने इनवाइट किया, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम ने मुझे इनवाइट किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ एक छोटी सी कहानी से। उस कहानी का शायद इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं उससे इसका जरूर लेना देना है। ये कहानी हमें एक हमारे हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक बार इंद्र देवता इंसानों से नाराज हो गए और ये कहा कि 12 साल तक पानी नहीं गिरेगा और अकाल आएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज पे देखा कि एक किसान था, बहुत छोटी सी उसकी जमीन थी, वो उस जमीन के ऊपर लगातार 5 साल 6 साल से हल जोत रहा था। तो जो इंद्र जी भगवान थे, उनको दूसरे देवताओं ने कहा, देखो ये कैसा मूर्ख आदमी है, इसको पता है कि ना तो 6 साल से बरसात हुई है, ना अगले 6 साल बरसात होगी, लेकिन फिर भी ये लगातार अपना हल जो है वो लेके शुरू हो जाता है और सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है, अपने पूरी फील्ड को प्लो कर रहा है, अपने सारे औजार लेके पहुंच जाता है सुबह सुबह। तो इंद्र भगवान ने सबको कहा कि भैया देखो, ये जो आदमी है ना, ये सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, क्योंकि 12 साल तक अगर ये खेती नहीं करेगा तो ऊपर वाले ने इसको जो नेमत दी है कि खेती करने की जो कला इसको दी है वो ये भूल जाए। इसीलिए रोज जाता है, अपने खेत जोतता है, हल चलाता है, ताकि इसका जो औजार है वो भी लगातार यूजफुल रहे, काम से लगातार लेता रहे। ऐसा ही काम ये वेबिनार्स कर रहे हैं। देखिए, आज हम कोर्ट जा नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा, हम तो वकील हैं, हम तो कोर्ट जाते हैं, रोज कोर्ट में नई चीज सीखते हैं, उसी से हमारी जमीन उपजाऊ होती है। मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन जब अब ऐसा नहीं हो रहा, हम कोर्ट नहीं जा पा रहे, तो ऐसे टाइम के अंदर जो वेबिनार्स हैं यही हैं जो हमारी स्किल्स को हमें लगातार, जिसे कहते हैं ना हम लोग, रिजुविनेट करते रहते हैं। हम इसको लेके बिल्कुल लगातार ये जो वेबिनार्स हैं, इससे हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें। मैं जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर भी आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मीडिया बहुत सकारात्मक भी है तो बहुत नकारात्मक भी है, लेकिन कोविड-19 का एक इफेक्ट ये तो आया है मीडिया के ऊपर कि आजकल मीडिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई है। ये कोविड एरा का आप एक इफेक्ट मान लीजिए, या आप इस चीज को किसी भी हिसाब से आप इसको मान लीजिए कि मीडिया हैज नाउ बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे नो दैट दिस इज देयर टाइम व्हेन दे कैन, जो एक मीडिया से हम लोगों का विश्वास कम हो गया है उसको वापस पुल बैक करने का मीडिया के पास यही टाइम। इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज जो भी है, वो तोल रहे हैं और तोल के वो इस चीज को हमारे सामने रख रहे हैं। आप देखिए, मेरी एक बहुत शुरू से आदत रही है, बिकॉज आई बिलीव आई एम अ वेरी पॉजिटिव मैन। इसीलिए मैं जब भी अखबार पढ़ना शुरू करा, ये मेरी पर्सनल हैबिट है, इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा अखबार को पीछे से मैगजीन पेज से पढ़ना शुरू करता हूँ।
वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। उसके बाद मैं फ्रंट पेजेस पे जाता हूँ, आई जस्ट मेक माई सेल्फ, एक बार मैं अपने आप को तैयार करता हूँ कि मैं उस अखबार को पढ़ूं, उसमें हो सकता है नेगेटिव न्यूज हो, पॉजिटिव न्यूज हो, लेकिन थोड़ा सा आई स्टार्ट विद अ वेरी रिलैक्स न्यूज। हमारे राजस्थान के अंदर एक अखबार है, मैं उसको बहुत अपलॉड करता हूँ क्योंकि उसने इस चीज को शुरू किया कि ऑन मंडेज दे डोंट प्रिंट एनी नेगेटिव न्यूज। अगर बहुत जरूरी होती है तो ही वो करते हैं, बट दे हैव नेम्ड द डे एज नो नेगेटिव न्यूज डे। वेरी कमांडेबल, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए मीडिया इस वक्त हमारी मदद बहुत कर रहा है। ये सोशल मीडिया है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास है। इस प्लेटफॉर्म को हम भी आज यूज कर रहे हैं। आज मैं अगर आप सब लोगों के सामने हूं तो इस वजह से ही हूं क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है इसको हम कहीं ना कहीं इसको हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि मीडिया हमें लगातार अपडेटेड रख रहा है। वो हमें बता रहा है कि देखिए एनवायरमेंट में चेंज हुआ। आज हमने देखा कि न्यूजीलैंड की एक न्यूज मैंने देखी थी जहां पर जो आइलैंड्स हैं उन पर जो बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स हैं वो आ रही हैं, डॉक्स में आ रही है। क्यों आ रही है? ये सब चीजें, दिस द इफेक्ट ऑफ COVID-19 is brought to us by the media. I appreciate the media for this. कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है, जैसे गंगा क्लीन हो गई, यमुना क्लीन हो गई, साहब वो जो ओजोन लेयर है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है। तो इस वक्त मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जो मेजर जो टॉपिक है अपना कि उसका लीगल इफेक्ट क्या है, लीगली क्या ऐसी चीजें हैं जो मीडिया कर रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके इफेक्ट्स, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ, उससे मैं 2-3 चीजें आपको हाईकोर्ट की बताता हूँ कि जिसका इफेक्ट सीधा सीधा मीडिया की वजह से आया है। एक अभी जजमेंट पास किया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उस बेंच ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑन। आप विश्वास करेंगे हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर जयपुर जहां पे मैं वकालत करता हूँ, वहां के सेंट्रल जेल में एक दिन में 130 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स निकले जेल में। एक जिसे कहते हैं एक ब्लास्ट, कोरोना ब्लास्ट हुआ हमारे वहां। कौन संभालता उस चीज को, कौन एक्शन लेता उसके ऊपर? कोई तो पिटीशन डालता, लेकिन मीडिया ने उसके ऊपर बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे। इट वाज ऑन न्यूज चैनल्स, इट वाज ऑन इन न्यूज़पेपर्स। उन लोगों ने उस इश्यू को इतना हाईलाइट किया कि हाईकोर्ट ने उस चीज को देखा, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर ना सिर्फ जो कैदी हैं उनके ह्यूमन राइट्स को इफेक्ट करता है, उनके लिए है, बल्कि वो जो जेल अथॉरिटीज हैं, हमारे जजेस हैं। क्योंकि देखिए कैदी जाएगा तो सीधा सबसे पहले एक जज के सामने अपियर होगा, मैं एज अ लॉयर उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अरेस्ट होती है तो पुलिस की स्टेट की ड्यूटी है कि सबसे पहले उसका COVID-19 टेस्ट कराए। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप उसको लीगल प्रोसीडिंग के लिए लेके जाओ, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। दिस इज द बेसिक राइट of an accused, of a prisoner, which was brought to the notice of the honorable court through media. This is the power of media, and also this is the positive side of media. जो कोरोना पैंडेमिक के अंदर जो ये काम मीडिया ने करा और जो इसका लीगल इफेक्ट आया, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं। एक अनदर बहुत अच्छा एक जजमेंट इस बीच के अंदर हमारे हाईकोर्ट ने और पास किया। हमारे यहाँ पर एक लेक है विच इज नोन एज द सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया, विच इज सांभर लेक। कुछ टाइम में ये हुआ कि वहां पर लगातार कुछ, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीडिया पर आया, सांभर लेक के ऊपर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और वो वहां पर ब्रीड भी करती हैं, वहां पर ड्वेल भी करती हैं, काफी सारी चीजें हैं जो उनकी एक्टिविटीज वहां पर रहती है। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, हजारों की तादाद में वो बर्ड्स वहां पर इस लेक के अंदर मरने लगे। मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, पिटीशंस लगी, सब कुछ हो रहा था। इस बीच के अंदर कोरोना,
का एरा आ गया, कोर्ट्स बंद। इसमें एक अखबार ने इस इशू को उठाया और हमारे हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ने और उनके जो सहायक जजेस हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर एक बाकायदे ऑर्डर बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। उन्होंने कहा कि आप वहां पर उन बर्ड्स के, जो हजारों बर्ड्स मर गई हैं, उनके कारकेसेस जो हैं उनको हटाइए वहां से। आप उन सब जो बर्ड्स मर गई हैं उनका आप पोस्टमार्टम करिए, आप उनके रीजंस पता करिए। इफेक्ट ऑफ मीडिया, लीगल इफेक्ट ऑफ मीडिया, ये जो अपन हमेशा बात करते हैं कि नेगेटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, मैं तो आज पॉजिटिव बात करूंगा मीडिया के लिए, क्योंकि इस वक्त शायद सबसे ज्यादा पॉजिटिव कोई है तो मीडिया है। इसके अलावा मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वो भी आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जैसे एक फेक मीडिया की अपन बात करते हैं, सब फेक न्यूज चल रही है लगातार, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू हमारे पास नेगेटिव न्यूज आती है। देखिए, उसको चेक करने का काम भी जो है वो मीडिया ही कर रही है। आज आप किसी भी न्यूज चैनल पे जाइए, आज आप अखबार में जाइए, वहां पर उन सब चीजों को तोलते हैं। एक फेक न्यूज, फैक्ट न्यूज के नाम से कार्यक्रम चलते हैं। नेगेटिव भी होता है लेकिन वो पॉजिटिव भी होता है। ये बात मैं कई बार कमेंट्स पढ़ रहा हूँ साइट के अंदर, उनके अंदर हमेशा ये आता है कि सर मीडिया बहुत ज्यादा फेक न्यूज कर रही है। देखिए, व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है, लेकिन आज हम और आप जुड़े हैं तो वो भी एक मीडिया है। चाहे आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया से फेसबुक पे देख रहे हो, किसी पे भी देख रहे हो, तो इस सब के अंदर मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक इंसिडेंट अकर हुआ राजस्थान के अंदर, जब कोरोना शुरू हुआ था। मुझे याद है कि शायद ये 24 मार्च जब कोरोना का लॉकडाउन वगैरह जब शुरू हुआ था, तब राजस्थान हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए एक लेटर पिटिशन की तरह उसको ट्वीट करते हुए भी एक जजमेंट पास किया था। उसके अंदर 8 पॉइंट्स दिए थे, जैसे पब्लिक में आप मास्क लगाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका इफेक्ट आपको पता है क्या है? उसका इफेक्ट क्या है? क्योंकि कुछ न्यूज आई थी ऐसे कि एक रिपोर्ट नेगेटिव आई तो एक आदमी को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदमी पॉजिटिव था और उसने काफी जनों को जाके वहां पर इफेक्ट आया उसका। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आप अपने इस सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। तो उन्होंने उसको दुरुस्त करते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसने पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी में उन्होंने बताया कि डिस्चार्ज करने से पहले उसके 3 टेस्ट होंगे। तो ये भी इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन लीगल साइड है कि मीडिया ने उस इशू को उठाया। हाईकोर्ट ने उसके ऊपर कई सारे, बहुत सारे 8 पॉइंट्स थे, मुझे याद है शायद 24 मार्च का ही ये ऑर्डर है, और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तो सोमोजो लेते हुए इसके ऊपर आदेश पारित किया था। अब देखिए, मैं ये बात एज अ लॉयर भी आपको कहता हूँ, क्योंकि हमारे पास सब तरह से लोग जुड़े हुए हैं, जो लॉयर्स भी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, सब हैं, कि इसके अंदर एक जिम्मेदारी आपकी और मेरी भी है। आप ये मत देखिए कि सिर्फ प्रिंट मीडिया या जो ये हमारा टीवी चैनल्स हैं ये ही हैं। सोशल मीडिया पे हम भी हैं, हम उस मीडिया को हम भी यूज करते हैं। कितना रिस्पॉन्सिबली हम उसको यूज कर रहे हैं ये भी देखना है। इस पैंडेमिक में if there is any connection between you and your family, like I am sitting at Jaipur, my elder brother Manish Mathur is at Ajmer, WhatsApp कॉलिंग हो जाती है, सब उससे हम जुड़े हुए हैं, एक फैमिली ग्रुप है। तो एक ये सब मीडिया यूज करने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, हम पे भी आती है। जो प्रिंट मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप सब उस लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप सबके ऊपर वो लायबिलिटी है। आपको वो चीज इतनी रिस्पॉन्सिबली यूज करनी पड़ेगी। कोई सी भी न्यूज आई, आपने खट उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, नो। आपने कोई न्यूज आई फेसबुक पे, आपने उसको लाइक कर दिया, नो। आप उसको पहले चेक करिए, फिर उसके बाद आप उसको फॉरवर्ड करिए। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, ये चीज मैंने इंटरनेट पे देखी थी, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ऑल ऑफ अस who use
professionally we use the mass media, social media. We are the shapers of our society. We can vulgarize that society, we can brutalize that society, or we can help lift it onto a higher level. The responsibility is totally ours. आज सिर्फ मीडिया को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में और हमारे सब में। इसके साथ मैं अपना उद्बोधन यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं विकास जी को, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन को, इन सब इनके जो चेयरमैन विनोद कुमार जी को, इन सबको धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जो आपने आज रिक्वायरिंग दी है तो काफ़ी कोशिश करी इसको पूर्ण करने की। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स वेरी नाइस टू सी मनीष भाई साहब, मनीष सिंह जी सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम ही ऑल्सो बिलोंग्स टू राजस्थान। ही इज अ स्टार ऑफ आवर फ्रेटर्निटी। थैंक यू सो मच सर। विनोद सर थैंक यू सो मच। विकास थैंक यू, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ऐसे ही जोड़े रखिए हमको। विजेंद्र सर थैंक यू। दिव्यांश यू आर वेरी वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जी धन्यवाद कपिल बाथुल जी, आपने बहुत अच्छे से कानूनी पहलुओं पर भी बात की, और जिस तरह से मीडिया का जो रोल रहा है वो बहुत सराहनीय रहा है, और पॉजिटिव मीडिया जो, चाहे आपने सोशल मीडिया को भी इसमें कनेक्ट किया, बहुत अच्छे से एडवोकेट्स को समझाया। मैं अब बात करूंगा डॉक्टर मनीष सिंघवी जी से, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और एडिशनल एडवोकेट जनरल है राजस्थान सरकार की तरफ से। Singhvi sir is the gold medalist in LLM and PhD in arbitration law. Over 300 reported cases in the Supreme Court, junior to Sole Sorabi, Attorney General of India between 1998 to 2004. Sir has been designated senior advocate by the Supreme Court of India in 2009. Sir has selected in civil services in 1996 but did not join. सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट से पिछले 2 महीने से एडवोकेटों ने काफ़ी पिटिशंस भी डाली, रिक्वेस्ट भी की, बट जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मीडिया की जो कवरेज है वो उन प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लेकर, जो उन्होंने उनकी जो स्थिति को स्पष्ट किया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक मीडिया का सार्थक प्रयास रहा है, सार्थक रोल भी रहा है, जिसमें सभी लोगों ने रोल निभाया है, चाहे मीडिया का रोल हो, चाहे सोशल मीडिया का रोल हो, चाहे एडवोकेटों ने भी काफ़ी पिटिशंस डाली। और हमने भी इससे 2 या 3 दिन पहले एक माइग्रेंट लेबर्स पे एक अपना सेमिनार किया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब आए थे। उन्होंने भी अपनी बात बड़ी जोर से रखी। ऐसे तमाम मंच के माध्यम से तमाम अतिथियों ने इस अभियान में अपना सहयोग किया। तो मीडिया का जो सार्थक सहयोग रहा, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल इस कोविड-19 के दौरान रहा है। तो मैं डॉक्टर मनीष सिंघवी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपना संबोधन रखें। धन्यवाद सर। प्रणाम। और विनोद जी, विकास जी, राठी जी, कपिल जी, सबको आपको बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस वेबिनार में बुलाया और कुछ मौका दिया। अब आप देखिए कि भारत के अंदर कई तरह की वाणी है। दिव्य वाणी है, देवलोक की वाणी है। नारद मुनि जी को अगर सही देखा जाए तो भारतवर्ष के सबसे पहले पत्रकार। तो मीडिया तो हमारे पौराणिक, कोई भी आप देख लें, संस्था देख लें, पौराणिक इतिहास देख लें, उस सब में आप पाएंगे कि आप लोगों की न्यूज़पेपर की और वाणी की कैसे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज पहले तो स्मृति से ही होता था, मुख से होता, फिर गुटनबर्ग आया है तो उससे फिर वो प्रिंट मीडिया आया। प्रिंट मीडिया आया तो उससे ज़्यादा फैलने लगी। ये समाज में जो नॉलेज है, समाज में जो इंफॉर्मेशन है, वो एक फैलने लगी। दूसरा सबसे बड़ा आया वो इंटरनेट से, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं, सोशल मीडिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो इवोल्यूशन ऑफ मीडिया है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड और उस इवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया को देखना पड़ेगा।
जब हम सब लोग जब बचपन में थे तो दो तरह के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले का मेरा मतलब जन्म है और मैंने अपना बचपन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले का देखा है। दो तरह के मीडिया होते थे। एक तो होता था मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हम अखबार होते थे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका। एक होता था बिल्कुल येलो जर्नलिज्म, जिसे हम येलो जर्नलिज्म कहते थे। वो बिल्कुल एक तरह से ब्लैकमेल टाइप का एक लोकल न्यूज़पेपर्स होते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया डिसाइड करता था कि क्या न्यूज आनी चाहिए, क्या न्यूज नहीं आनी चाहिए, और वही हम उसको सत्य मान, और वो काम बहुत बखूबी से निभाते थे, मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ, पर वही हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो एक टीवी चैनल्स आ गए बहुत सारे, उसके बाद आया इंटरनेट, उसके बाद आया सिटीजन जर्नलिज्म, जो राठी साहब ने भी कहा, माथुर साहब ने भी कहा कि हाँ, हर व्यक्ति अब एक जर्नलिस्ट हो गया। अब मीडिया ये नहीं रहा है, जैसे माथुर साहब ने कहा, मीडिया जिसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है बॉम्बे में बैठा हुआ या दिल्ली में बैठा हुआ या जयपुर में बैठा हुआ, इंडस्ट्रियल हाउस ही आज एक मीडिया हाउस है। और ये वही पत्रकार, आज हर नागरिक पत्रकार बन चुका है। कोई भी आदमी, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया के द्वारा कर सकता है। ये इतना बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है कि हर व्यक्ति अब अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जब हर व्यक्ति को ही पावर आ गया, तो उस पावर को हम यूज और मिसयूज कैसे करते हैं या अब्यूज कैसे करते हैं और उसकी यूटिलिटी कैसे बनाते हैं, ये इसी बात में है। अब मैं आपको कोविड से इसको जोड़ते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस जोड़ते हैं, बात करते हैं। कोविड के अंदर, भारत के अंदर आज 135 करोड़ लोग हैं, आपको 135 वर्जन्स मिल जाएंगे कि कोविड क्या है, कैसे फैलेगा, कितना फैल गया है, कितना नहीं फैल गया है, आने वाले समय क्या होगा। और भारत का, और इसको कोई गलत बात नहीं, तो किसी को पता नहीं है कि क्या है, आज भी किसी को पता नहीं। पर हमको ये देखना होगा कि न्यूज और व्यूज में फर्क देखना होगा। न्यूज तो हमेशा सच ही होनी चाहिए, न्यूज तो सत्यमेव जयते एक ही होनी चाहिए। व्यूज अलग अलग हो सकते, आपका मत, मेरा मत, हम 5 जने बैठे हैं, 5 के अलग मत होने चाहिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम एक स्वतंत्र भारत में रहे, पर जो न्यूज होती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहते हैं, वो एक हो, फैक्ट एक हो। आप जब फैक्ट को डिस्टॉर्ट करते हो, फैक्ट को आप ट्विस्ट करते हो, जिससे हम फेक न्यूज कहते हैं, तभी मीडिया का रोल बदनाम होता है। और अब मीडिया का मतलब में कोई इंडस्ट्रियल हाउसेस से मतलब नहीं है, हम सब उसके पार्ट बन जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कानून में आप देखिए, कानून को कंट्रोल करने की कोशिश की और एक चिलिंग इफेक्ट होता है। कोई कानून कलेक्ट नहीं, इसको जैसे माथुर साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, कोई कानून इसको सेल्फ कंट्रोल। आप देखिए, पहले भी प्रेस थी, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली सेल्फ कंट्रोल है। कोई कानून वो इसमें इस तरह का कुछ नहीं है कि भाई प्रेस ऑफ इंडिया किसी को रोक सकता है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी को रोक सकता है। पर हाँ, अब हर सिटीजन जर्नलिज्म आप बन जाते हो, आप सोशल मीडिया के पार्ट बन जाते हो, आप ट्विटर के पार्ट बन जाते हो, आप इंस्टाग्राम के पार्ट बन जाते हो, आप फेसबुक के पार्ट बन जाते हो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी उतनी है जितनी कि एक एडिटर जो बैठा हुआ है, एक बहुत बड़े पत्रकार का या कोई चैनल का बहुत बड़ा एंकर है, उसके बराबर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ही निभाना इस कोविड के अंदर एक बहुत बड़ा हमारी चुनौती भी है। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, किस तरह से पॉजिटिविटी आई, और उसके साथ साथ ये जो फेक न्यूज छपती है, उसके अंदर मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया को वापस एक अपील करना चाहूँगा। एक आता है, मेरे को पता नहीं, एक कई चैनल में आता है वायरल सर्च, आप देखेंगे वायरल सर्च आता है। तो हम लोगों को भी कोई भी ऐसी फेक न्यूज आए तो एक वायरल सर्च टाइप निकालना चाहिए कि साहब ये बिल्कुल ड्यूटी न्यूज है, चाहे वो व्यक्ति अकेला निकाले, उसको फॉरवर्ड करे या मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं आए। वायरल सर्च, दिन के अंदर कोई भी फेक न्यूज आए, उसका वायरल सर्च होना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ये सबसे बड़ा कार्य है। कोविड इंडिया में लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था कि फेक न्यूज से बचें, क्योंकि ये पता था कि कोविड में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा सकती हैं, तरह तरह की बातें फैलाई जा सकती हैं। इसलिए हम सबको ये देखना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और हम लोगों को भी इस बात पे बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि
कोई भी तरह की फेक न्यूज आए तो उसको तुरंत उसका खंडन किया जाए हर माध्यम से, चाहे वेबिनार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे प्रेस हो, चाहे कोई भी। ये सबसे बड़ी बात है। अभी एक बंसल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि साहब वो एक करा दी गई कि साहब न्यूज़पेपर से कोरोना फैलता है। अब बताइए प्रेस, और आप देखिए सबसे बड़ी जीत है प्रेस की आज की तारीख में। प्रेस को एसेंशियल सर्विस माना, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एसेंशियल सर्विस है। तो जो प्रेस है उसको आपने झूठी खबर से कि साहब कोरोना फैल सकता है, आपने कितना बड़ा एक हमारा ज्ञान का स्रोत था उसको आपने बंद कर दिया, उसका वायरस सच होने में कितना समय लग गया। तो ये सब बातें हमको बहुत देखनी पड़ेगी कि क्या होता है। अच्छा, एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि पहले जब भी अखबार आते थे, मेरे को बचपन में याद है कि ऐसे अखबार पढ़ता था मैं, स्पेशली कुछ लोकल अखबार आते थे जिसमें ऐड होता ही नहीं, फिर ऐड आने लगे, फिर पेड न्यूज आने लगी। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि ये जो न्यूज की जो कॉस्ट है वो तो जीरो हो गई। उसके तहत क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसों का तो स्रोत है। जब आप न्यूज़पेपर चलाएंगे या कोई न्यूज मैगजीन चलाएंगे या कोई वेबसाइट चलाएंगे जो न्यूज देती है, इसका भी पूरा खुलासा होना चाहिए कि भाई आप लोगों का इनकम स्रोत क्या है, एड से आता है, कैसे आता है, उससे भी नहीं। तो ये फेक न्यूज की कुछ ऐसी एक तरह का वेरी सॉरी टू से, पर किस तरह का बिजनेस बन गया है कि फेक न्यूज फैलाई जाए। इसको रोकने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये पता चले कि जो प्रोफेशनल्स है उसका भी कहीं ना कहीं इस बात का उजागर हो कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर कंटेम्प्ट कोर्ट का कंटेम्प्ट तो कानून है, पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट तो कानून है। अभी तक एक पेंडेमिक का छोड़ दें 54 फेक न्यूज को छापता, उसका कोई मेरे को नहीं लगा कोई FIR लंबी चौड़ी फाइल हो सकती है। वहां पे कानून डेफिशिएंट माना गया है। तो ये कोविड को लेके तो उन्होंने कानून बनाया है, पेंडेमिक को लेके, अदरवाइज कोई भी आदमी कुछ भी लिख देता है, इवन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ भी लिख देता है, और कुछ इसका कोई भी प्रावधान नहीं। कोई ना कोई सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म आना चाहिए ताकि हमको ये लगे कि हाँ ये एक न्यूज आई है, इसका भी कोई डेटरेंस होना चाहिए। देखिए कोई भी मिस्चिफ होती है तो एक इसमें ये डेटरेंस होता है कि आगे से आप मिस्चिफ करोगे तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी, मैं कहूँ जेल भेजो, तो कोई डैमेजेस या कुछ तरह का, इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए। अभी तो आदमी कुछ भी लिख के, कुछ भी छाप के, कुछ भी बोल के वो निकल जाता है और लोगों को भ्रम फैला जाता है। उस भ्रम के चक्कर में बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह का भी प्रावधान अभी कानून में नहीं है मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए। और एक सोशल मीडिया पे हम सबको बहुत बहुत रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो फ्री स्पीच की आती है, जो फ्री स्पीच आज हमारे हाथ में आ गई है, हर सिटीजन के हाथ में आ गई है, तो हमको ये देखना है कि हम उसको रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें और हम इसको बिल्कुल इस चुनौती को लीड करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका मिला और मैं आपसे बात। धन्यवाद। जी सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से कानूनी पहलुओं पर बात की, तो इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, कहीं ना कहीं वो पत्रकार साथियों की अकाउंटेबिलिटी तो तय करती है। जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अब बताया था। हाँ जी, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं पत्रकार साथियों की अकाउंटेबिलिटी को तय करती है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है उसमें? नहीं है, पर उसमें भी कोई पनिशमेंट टाइप मेजर चीज नहीं है। कहीं ना कहीं वो करती है, वो वार्निंग दे देती है, वो कर देती है। पर अभी सोशल मीडिया में तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। आज मैं कुछ भी लिख दूं और हो भी नहीं सकती जी। तो ये तो एक सिटीजन की ड्यूटी होगी, तभी काम आएगा। माथुर साहब ने इस बात को बहुत कहा कि हमारी ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटी मान लें आप, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो आज कोई भी आदमी फेसबुक पे जा सकता है फ्री में और कुछ भी छाप सकता है, कुछ भी लिख सकता है। जी। ये जो सिटीजन जर्नलिज्म आया है, इससे फेक न्यूज की जो कंसेप्ट है, आप देखिए आज से 30 साल पहले फेक न्यूज थी क्या? मेरे को याद नहीं, फेक न्यूज पर कंसेप्ट भी, वर्ड भी था। जब तक ये सोशल मीडिया नहीं आया था
फेक न्यूज का कोई कंसेप्ट ही था, हम लोग को मेरी नजर में नहीं था आज से 25 साल पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते कि फेक जी न्यूज सिंह क्या होता। साहब, मैं एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये छत्तीसगढ़ से हैं मिस्टर रहीश। ये पूछ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था मीडिया की कवरेज के आधार पर, उसको आप कितना सार्थक मानते हैं? देखिए सर, मैं उसमें अपीयर हो रहा हूँ, मैं मेरा ये प्रोफेशनल एथिक्स से मैं बोल नहीं सकता, मैं अपीयर हो रहा हूँ उस मैटर सरकार की तरफ से। सॉरी, मैं मैं नहीं कह सकता, मेरी एथिक्स नहीं है इसमें, नहीं मैं जी धन्यवाद। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास सोनीपत से, ये है रमन मलिक। ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज आती है उनके अगेंस्ट में हम क्या कानूनी एक्शन ले सकते हैं? हम आईटी एक्ट या किसी मीडिया को जो अकाउंटेबिलिटी करते हुआ कोई लॉ है, तो दिव्यांश कृपया अपना प्रकाश डालें। विकास जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक हो या ट्विटर, उन पे एक ऑप्शन होती है रिपोर्ट करने की। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है पोस्ट, आपको लगता है कि क्या ये इन्फॉर्मेटिव ऐसा है कि इनअप्रोप्रिएट पोस्ट है और इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लिक एंड इट हर्ट्स सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। There is an option available on the Facebook and on the Twitter and all the social media handles that you can report it to them, and they take due action on and it has even they have gone to extend the disabling उन्होंने अकाउंट्स भी बंद कर दिए हैं लोगों के, और डिसेबल कर दिया है कई परमानेंटली, या they have given them warning of from posting such news, and they take strict action on when such fake news is reported to them. So there is a facility on all these social media channels where they provide. So I want that if any user comes to know about such fake news, they should immediately report it to the even they can report it to the police authority. They can take up with such institutions like social media, Facebook and Twitter, or they can themselves report it to the Facebook and other social media. And I would like to add that ये फेक न्यूज हमें ही नहीं, सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें भी एक तरीके से मेन अटैक करती है। जैसे रिसेंटली मैं बताना चाहूँ, जैसे अक्षय कुमार ने डाला चैनल में डाल दिया कि उन्होंने अपनी बहन को और उसके बच्चों को ट्रेन पूरा बुक करके बॉम्बे से दिल्ली भेज दिया। ये न्यूज दिखाते कि सोशल ने बोला था, जबकि अक्षय कुमार केम आउट एंड क्लैरिफाइड दैट कि ऐसा कुछ कभी किसी ने किया ही नहीं, और he has been nothing has been done, it's a completely fake news, and he has said that he is planning to initiate some legal action against peddlers of fake news. तो ये हर किसी को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है। पहले भी ऐसे लोगों को करती रही है कि कभी रात को कोई सोता है तो पता चलता है कि उसका कि तो इनकी डेथ हो गई, ऐसी न्यूज फेक न्यूज शेयर कर देते हैं, एंड दे हैव टू कम आउट एंड क्लैरिफाई कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिंदा हूँ। तो फेक न्यूज जिंदा इंसान को भी मार देती है, ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे न्यूज को हमें रिपोर्ट करना चाहिए, यूजर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए या चैनल्स को करना चाहिए जो सोशल मीडिया पे है। जी डेफिनेटली दिव्यांश, एंड यू सेड वेरी करेक्ट ऑन दिस टॉपिक। तो मुझे लगता है कि अब हम 1 घंटे से लगभग ऊपर हो चुका है, तो मैं विनोद कुमार गोयल जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम से, अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे सभी गेस्ट का वोट ऑफ थैंक्स करें और अपनी स्पीच को कंक्लूड करें। धन्यवाद। Thank you, Vikas. Thank you. Before concluding this session and before giving the vote of thanks, I would like to share some views on today's topic. It is very true that every coin has the two sides. One is positive and one is the negative. So positive way is much better. If we think positive, then we go towards the positive. If we think about the negatives, of course we should think about the both the sides, but we should positive most of the time. We should think in positive ways, because the positive ways gives you the way for go ahead towards the positiveness. तो आज अगर हम ये बात करें कि सोशल मीडिया या हम बात करें प्रिंट मीडिया या हम बात करें आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा
कि इस पेंडेमिक में आज उन्होंने जो एक आम आदमी की आवाज उठाई, जो एक गरीब मजदूरों की आवाज उठाई, जो सच के पहलू को सरकार तक पहुंचाया और जुडिशरी तक पहुंचाया, और कहीं ना कहीं उनकी मदद करने में इस पेंडेमिक को में इस कोविड-19 के जो इफेक्ट्स हैं उसको कम करने में लोगों की जो सहायता की है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें कोई भी सोशल मीडिया पर आई हुई न्यूज़ को फॉरवर्डिंग नहीं करना चाहिए विदाउट द वेरिफिकेशन ऑफ देयर ट्रूथनेस और जेन्युइननेस, बिकॉज समटाइम्स हमारे पास ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई ये बच्चा खो गया है, इसका ये फ़ोन नंबर है, पता लगता है वो बच्चा बड़ा होके बुढ़ा होके शादी होके तब मर भी गया है, अभी उसकी न्यूज़ चल रही है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूज़ आती है तो हम अपने रिसोर्सेज से अगर कोशिश हो उन नंबर्स पे कॉल करें या उसकी ट्रूथनेस की जानकारी, उसकी सच्चाई की जानकारी निकालने की कोशिश करें, उसके बाद ही हम इसको फॉरवर्ड करें तो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी प्रिंट मीडिया है, जो हमारी सोशल मीडिया है, वो जितने भी साथी आज कोविड-19 के इस को दरकिनार करते हुए इसकी जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी हर चीज को दरकिनार करते हुए आगे बढ़े हैं और जनता सेवा के लिए, देश सेवा के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, हमारे सभी मीडिया पार्टनर्स को सैल्यूट करते हैं। और आज के विशेष सहयोग के लिए latestlaw.com को हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू latestlaw.com is very is the top most famous law news network in today's time. So thanks, Mr. Divyansh, Thank you, sir. Being our media partner in today's webinar. I hope we'll continue to keep in touch with other webinars and the other programs. And at last, I would like to give a thanks to all speakers. I, on behalf of All India Lawyers Forum and on behalf of national and state teams, and on my own behalf, extend a hearty vote of thanks to our media partner, latestlaw.com, India's best legal website. And I would like to give my hearty vote of thanks to our today's keynote speaker, Dr. Munir Jilvi, Senior Advocate, Additional Advocate General, Government of Rajasthan, Supreme Court of India. Mr. Kapil Mathur, Advocate from High Court of Jaipur and Member Bar Council of Rajasthan. Divyansh Sanurati, founder of today's top legal website, latestlaw.com. Vijendra Bansal ji, special correspondent, Delhi NCR और हरियाणा, दैनिक जागरण, Free Media. Respected speakers, you all spoke very well on the today's topic, role of media during COVID-19 and legal perspective. And today's lecture is very motivational and informative for the participants. And we are much obliged to you all for sharing such valuable and unique information with our participants and your valuable time for us on our one call only. I also would like to give thanks to all our participants of the today's webinar. And finally, I would like to give special thanks to our all strong pillars of All India Lawyers Forum, national and state executive team members, our co-chairman, Mr. Vikas Sharma, our national coordinator, Mr. Subir Sidhu, who is the youngest member of Bar Council of Punjab and Haryana, our national president, Mr. Abhinav S. Agarwal, our secretary, and Gujarat Nabadi, foreign petition coordinator, Mr. Coordinator, Professor Srita Bajaj, our IT head, national IT head, Mr. Manvinder Sharma, our Haryana State President, Udit Mendilata, Haryana State Vice President, Hemant Sukija, Arpan Darula, General Secretary, Mr. Amit Gupta, Mr. Rajan Sharma, Muthu Nehra, Joint Secretary, and Chandigarh State President, Mr. Amandeep Manasi, Odisha State President, Mr. Jayanta Kumar Padi, Vice President, Mr. Kishore, Jharkhand State President, Mr. Deepesh Kumar Nirala, Secretary, Mr. Satyendra Prasad, Joint Secretary, Ministry, Maharashtra State President, Mr. Durgesh Gupta, Punjab State President, Mr. Vikramjit Singh Chatana, and VP Vice President, Mr. Karan Jindal, Uttar Pradesh State President, Mr. Sagar Sharma, and Vice President Wasim Ahmad Safi, UP State Coordinator, Ms. Preeti Sirohi, UP West Student Wing Coordinator, Mr. Subham Singhal,
West Bengal State Coordinator Bhagyashree, sorry, Ms. Jahan Ara Kulsum, and State Wing Coordinator, Student Wing Coordinator from West Bengal Bhagyashree and Priya Mukherjee, Gujarat State Coordinator Mr. Bhagyodaya Mitra, Kerala State Coordinator Mr. Safi Basir, Karnataka State Coordinator Ms. Vijaya Lakshmi, R.M. Javed and Gopal P. Patel, Assam State Coordinator Mr. Biswajit Hazarika, Jammu and Kashmir State Coordinator Mr. Furqan Sofi, Advocate, J&K Wing Coordinator Mr. Irshad Ahmed Dar, and all other team members who are working with AILF and working hard for the betterment of our legal fraternity and law students. Thanks to all of you to join us today. We'll come soon with another session, with another learning, with another legendary key speakers, and we are very thankful to of you. If any of our listeners want to join All India Lawyers Forum as a team member, they can send their details on our email ID, that is ailawyerforum@gmail.com, or you can send your comments on our Facebook Messenger. Please like our Facebook page, that is All India Lawyers Forum, to get regular updates regarding the legal updates. Thank you very much.